गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो किसी परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स का जीवन बनाया है। और आजकल तो आप जानते ही होंगे कि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, हम इंग्लिश का कितना ज्यादा यूज करते हैं। हम जब भी पढ़ाई करते हैं उसमें भी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स रहती है वो भी, उसमें भी काफी सारी टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में लिखी रहती है। तो इंग्लिश तो आजकल हमारे जो जीवन है उसका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जा सर से, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ बनाई है, वो भी इंग्लिश सिखा के। और सर एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंग्लिश टीचर है। और मतलब सर ऐसा पढ़ाते कि मतलब ऐसा लगता है कि सर जादू की छड़ी घुमा रहे हैं और जो स्टूडेंट है उसको तुरंत से इंग्लिश आ गई है। तो आज हम सर से बातचीत करने आए हैं और मैं अपने मेरे जो दिमाग में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए उनका भी हम आंसर पूछने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर आपने तो इतने सारे स्टूडेंट्स को टीच किया है, उनकी लाइफ बदली है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी भी शुरुआत कैसी थी, आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्यों चुना? First of all, thank you very much for coming to my वेलकम सर। academy, and I highly appreciate at this age you जी are the blogger, and it's at this age we were knowing nothing, and just I highly appreciate the way you are striving in your field. थैंक यू सर। So similarly, but frankly speaking, when जी I started my journey as a teacher, at this age I was a sports person. I was जी a national player in hockey, and when I was in class 7, from 7 to PG level, I was simply a sports person. I'm a national player in hockey. I got 2 gold medals in national games, in rural national, junior national also. And fortunately I got an opportunity to work with Indian Railways. I जी was सर। given the job there. uh, and then I got an opportunity to work with CRPF also. And afterward I started playing with some international clubs also in the यस। professional contact, just like an IPL, you could see, so in Calcutta. So whole journey was completely based on sports only. I never ever thought to make my career in this profession, यस सर। frankly speaking. But when I was in final year of my master degree, I did my master in anthropology, not in English language. It was completely a different field. So the anthropology is just evolution of human being. In this particular subject, I did my masters. And when I was in final year, that time I was just selected for all India inter-university competitions there. And across the country, we were more than 150 players. यस सर। And that finally I was among top 20s of India, and that match was going to be held in Russia at that time. We were going to represent India in यस सर। Commonwealth game and just at the Indian universities. So that time, from up to that level, when I reached there, so unfortunately there's something happened. That's okay, and because of that, the regional politics, you can say that okay, I was यस सर। dropped out intentionally. Then finally I made my mind to be in academics, so I यस सर। thought nah, I should just focus towards my study. So when I just took as a career, that was the first year of my study. यस सर। By the time मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी, और but final year that's when I completed. So the same concept, like I was focused, the temperament, the mindset which was in the sports, the same I put here in my study, यस and सर। I taught there. And just afterward I found that then I should study. So then 2 years I spent for civil service examination after my PG. At that time I came in contact with the academic intellectual personality. Then I thought then I should try in this यस field. सर। So I made my mind in academics, frankly speaking. So then I got an opportunity to teach in college. So I was called in Chhattisgarh College there as an यस सर। assistant professor under ad hoc basis. There I performed my just almost 3 months over there, and there I just made my mind, and something went just pretty good in my profile. That okay, then I got an opportunity to teach the all the students of up to BSc. Finally, I was just working over there यस सर। as assistant professor. So teaching came in my life in this way, and then finally made my mind is okay. I love
this profession. Yes, Here sir. I got an opportunity to interact with the people. Every year you have a new student, new friends. Like you are contributing to the society. You Yes, are sir. giving something what you have taken from the society. So you have freedom of working. You are imparting your precious knowledge, skills, and experience to for the betterment of the society. सो यू आर लाइक आप सोसाइटी का एक अहम हिस्सा हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं. सो Yes, मुझे sir. बड़ा अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड बी लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन, एंड देन the journey started here. Yes, sir. And since 1996 then I started this particular subject, English language. By the time I was teaching my own subject, one incident happened that I think it would be pretty long, that's okay. So then uh, I made my mind to be in this profession. Frankly speaking, when I was teaching there in Chhattisgarh College, that time my Hindi medium students were pretty happy with me, but English medium student, they were not at all happy because I was not doing their language, and they were asking question in English and I was answering in Hindi. So that was quite embarrassing situation Yes, for me. sir. So they were bullying so many then I it was very tough for me to manage there. But I had to teach both the students Hindi and Yes, English sir. medium. So most of the time I spent for the converting, the translation, Yes, sir. spending long hours in library. So, but I thought that I should not like. In the meantime, many times I thought that I should not continue with it. I should resign. But every time, then sports supported me here from the inner. No, you should not give up. You should try. At least एक chance बनता है. बट विवान एक ऐसी इंसिडेंट हुई मेरे साथ जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी. तो Yes, sir. कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे. आई एम सॉरी, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. Hmm. वो कुछ क्लास में बुलिंग करते थे और मस्ती करते थे, और उनकी वजह से हमेशा एक मजाक बनता था मेरा क्लास में. मैं हमेशा उनके जवाब नहीं दे पाता था. वो क्वेश्चन इंग्लिश होती थी और मैं हिंदी में जवाब देता था. तो मुझे लगता था कि यार मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती. दे वर राइट. बट हुआ कुछ ऐसा कि वो जो कमियां थी, जब आपके पास स्किल्स नहीं होते तो आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है. यू एवरी वेयर यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू जस्टिफाई विद द जॉब विच इज गिवन टू यू. Yes, सो sir. जब मैं वो जॉब कर रहा था तो कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दे स्टार्टेड बंकिंग द क्लास, मेकिंग फन इन द बोर्ड एंड ऑल जस्ट. सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उस सेमिनार, शैल आई कंटिन्यू सा, ओके, उस सेमिनार में हुआ कुछ ऐसा कि जो स्पीकर थी वो एक नेशनल रिप्यूट पर्सनालिटी को जी, आना सर. था. और जब मैंने अनाउंस किया अपने स्टूडेंट को कि उन्हें क्लास अटेंड करनी है, सो सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्लास से भाग गए. आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू कम, बट हुआ कुछ ऐसा कि वो नहीं आए. थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उनकी आवाज़ बाहर आ रही है. So they were none other than my student. I called them, please get in, attend the class. So they were not in a mood to come. Suddenly I saw that वो कोई क्रिकेट का बैट पकड़ के आए थे, कोई बॉल उछाल रहे थे, कोई ग्लव्स पहने थे, कोई कैप, इवन गर्ल्स वे देयर. So I was shocked to see them. जैसे कि आज एक इम्पोर्टेंट डे है और in this attire, I was shocked. So मैंने उनसे कहा कि चलो प्लीज अटेंड करो क्लास. बोले नो नो सर, वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास. I said why? So we have a match today, so we want to play the match. That's then I suggested him, no, don't do this one. You are going to miss one of the important session, and the lady who is going to present the session here, she is an international personality. You are going to read her books and all. She is such a great personality, so don't miss the class. Attend. Well, no, we don't want to attend the class. So I was HOD at that time, acting HOD of that. But what happened? So I said that if you are not ready to attend, so leave the class. Why did you come here? Yes, sir. So they said we forgot to bring the stump. वो 3 डंडे स्टम्प लाना भूल गए. मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो एंड टेक आउट एंड लीव द क्लास. सो एक दूसरे को उन्होंने देखा और एक ने इशारा किया, तो दूसरा बंदा अंदर आया. और अंदर आने के बाद पता उसने क्या किया? उसने मेरी चेयर पकड़ी और वो खींचते हुए लेके आया मेरे सामने. एंड ही लिफ्टेड अप द चेयर, मेरे सामने आई टू आई कांटेक्ट.
और उसने मुस्कुरा कर कहा, सर वी हैव गॉट द स्टम्प. सो दैट वाज सच अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन माय लाइफ. उसने उस चेयर को फेंक कर दिया अपने दोस्त को, और वो लोग सारे हुर्रे करते हुए कॉरिडोर से भाग गए. तो जब मैं लौट के आया, बस एक सेकंड में ऐसा लगा कि एक बड़ा सा स्लैप मुझे पड़ा है, और 70 स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, उनके सामने एक एचओडी की चेयर को खींच के ले गए सिर्फ स्टम्प बनाने के लिए. मेरी चेयर को उन्होंने स्टम्प बना के छत्तीसगढ़ कॉलेज में उन्होंने ग्राउंड में खेला. तो दैट वाज द डे आई कैन नेवर एवर फॉरगेट. समटाइम लाइफ में बहुत कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो कभी आप भूल नहीं सकते. मैं जब लौटा तो मेरे पास चेयर नहीं थी. एक बच्चे ने मुझे एक चेयर दिया, सर प्लीज़ बैठिए. फिर मैंने उनको सही सजेस्ट किया, नो नो, मेरी चेयर तो गई, मुझे अपनी चेयर खुद से लानी है, मुझे खुद मेहनत करना है. और फिर मैंने वो रेजिग्नेशन लेटर निकाल के दिखाया जिसमें मैं 3 बार वो डेट लिखा था जब मुझे रिज़ाइन करना है. देन आई टोर इट अप, थ्रू अप, और फिर मैंने कहा कि आज के बाद मैं ये सब्जेक्ट छोड़ता हूँ. और जिस लैंग्वेज के कारण आज ये सिचुएशन आई है, मैं आज अब से बस यही पढ़ाऊँगा. फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा, और उस दिन के बाद से तय किया कि पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे इंडिया मेरे पास एक दिन पढ़ने आएगी और मैं पढ़ाऊँगा लोगों को. फिर मैंने मेहनत की, वर्क किया, और आज नतीजा ये है कि मेरे पास मेरी ऑनलाइन क्लास में इज़राइल से भी बच्चे रहे, मेरे पास कुछ बच्चे यूएस से रहे, यूके से रहे, ऐसे बहुत सारे जो लोग यहाँ इंडिया से बाहर दुबई में हैं, सल्तनत ऑफ ओमान में है, दुबई में, शारजाह में, ऐसे बहुत सारे खैबर पख्तून अफ़गानिस्तान से भी बच्चों को मैंने पढ़ाया. तकरीबन 17,000 बच्चों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई आज तक, और अभी कोविड के दौरान मैंने 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया. सो ये जो जर्नी रही, ये मैं थैंक दो स्टूडेंट जिन्होंने दोज हू पुट सम ट्रबल इन माय लाइफ. सो वो कहते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स आर द रियल अपॉर्चुनिटी. जो मुसीबतें, परेशानी, तकलीफ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, दरअसल वो आपकी ज़िंदगी में एक तरक्की के रास्ते बना के जाती हैं. इधर यू विल बी शैटर्ड और यू विल बी समबडी. सो बस उस वक्त अपने आप के साथ एक डेडिकेटेड एफर्ट्स रखना चाहिए, एक सिंसेरिटी होनी चाहिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट रहना चाहिए, और अपने आप को साबित करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स लगाने चाहिए. मैंने वही किया, और देन थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, फैमिली का सपोर्ट रहा, और उन्होंने मुझे वो सब करने दिया जो मैं करना चाहता हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी हू पुट मी इन दिस प्रोफेशन, इन सच ए नोबल प्रोफेशन. और अब मैं अक्रॉस द कंट्री सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ. मुझे कॉर्पोरेट से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं डिफरेंट प्लेसेस में भी जाता हूँ. आज मेरी एकेडमी में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर जजेस भी हैं. मैंने जुडिशल ऑफिसर्स को भी पढ़ाया, 17-18 मजिस्ट्रेट की एक साथ क्लासेस ली. मेरी क्लास में रेलवे मजिस्ट्रेट, सीबीआई के जज, ये सारे लोग भी आए. जी, बताने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी हाइट गिना रहा हूँ, बस ये है कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. मीन्स इफ यू डिसाइड यू कैन, सो यू कैन. सो गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ना चाहिए. और वो दिन आया कि सारे, अभी मेरा हॉस्टल्स भी चलता है पूरे यहाँ एकेडमी में. सभी सेगमेंट के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे भी आते हैं, यस सर. और सीनियर वर्किंग लेडी भी आती हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, और पूरी सभी जगह से यहाँ आसपास मेरा हॉस्टल्स भी है. लोग पर्टिकुलर इसी क्लास के लिए आते हैं, क्लास के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी. मेरा एक छोटा सा एनजीओ भी है जिसका नाम मैंने मदर्स रखा है, कि मेरा मानना है कि मदर्स सबसे पहली टीचर होती हैं. तो मैंने मदर्स मीन्स मिर्जाज माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प एजुकेट एंड रिफॉर्म सोसाइटी, इस नाम से मैंने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड की. अपनी मम्मा को मैंने डेडिकेट किया क्योंकि उन्होंने भी मुझे इसके लिए परस्यू किया, और देन उनकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ आया. एक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा एक, मैं एक और नोबल लेडी मिसेस माथुर हैं, उनके साथ एनजीओ में भी नेकी की पाठशाला में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, और वहाँ संडे को मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ. तो ये मेरी क्लासेस चलती हैं, और आई एम एन्जॉयिंग माई जॉब. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी हू पुट मी इन दिस प्रोफेशन. आई एम इम्पार्टिंग माई स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू द सोसाइटी. स्पेशली मुझे उन बच्चों के लिए काम करने में बड़ा अच्छा लगता है जहाँ तक लैंग्वेज पहुँच नहीं पाई है.
सर, तो मैंने जो आपका लाइफ का स्ट्रगल देखा और आपकी जो बातें सुनी उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो मेरे अभी मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्या मैं अभी उसको पूछ सकता हूँ? सर, तो मैं ये सोचता हूँ कि इंग्लिश सबसे इजी तरीके से कैसे सीखी जा सकती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी जो तरीका है इंग्लिश सीखने का वो क्या रहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग है, ये आपको समझना जी होगा सर। कि कभी भी ये प्रोसेस टिल लास्ट ब्रीदिंग आपको सीखते ही रहना है। जी सर। तो सबसे पहली बात ये कि ये इसमें कभी आप एक सैचुरेशन वाली बात नहीं आएगी। मतलब मुझे एक याद आ रहा है, जब भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो जब वो अपने बैरक में थे और जब उनको लेने के लिए जब आए, उनको जस्ट कुछ ही मिनट बचे थे उनको हैंग करना था, तो उस वक्त ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो उन्होंने कहा चलिए अब, तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ बस पढ़ना। तो सिपाही ने कहा कि अब क्या रखा है, 2 मिनट बाद यू आर गोइंग टू एंड अप योर लाइफ, तो अब पढ़कर क्या कर लोगे? तो उनका जवाब सुनिए क्या इतना अच्छा था कि मुझे आखिरी सांस तक ये ना लग जाए कि एक कसक न रह जाए कि मैं जाते जाते कुछ सीख नहीं पाया। तो सबसे पहली बात तो सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो चाहत अगर आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी लर्निंग का प्रोसेस है, हर किसी से आप सीख सकते हैं। मतलब आपके लिए कोई छोटा और बड़ा कुछ नहीं, हर किसी से आप सीखी जा सकती है चीज़ों। तो हमेशा ये रखना चाहिए कि जो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक ब्लॉकेज बना के रखते हैं दिमाग में, तो वो नहीं होना चाहिए कि वो मीन्स जो इनपुट है वो हमेशा आना चाहिए और हर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे कहीं से भी किसी से भी। तो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। अगर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा नहीं है तो आप उसको कितना भी कोशिश करें आप नहीं सिखा सकते। तो एज ए टीचर हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए और उनको समझा जाए, उनके बेसिक उनके प्रॉब्लम को समझा जाए, उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझा जाए, उनके स्ट्रेंथ को समझा जाए और उसके बाद बच्चों के लेवल पे आकर आपको सिखाना है। टीचर अगर अपनी जगह पर अगर रहकर कोई चीज़ सिखाना चाहेगा तो वो इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू हैव टू बी द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, उनको समझना होगा, उनकी दिक्कतों को समझना होगा उनके साथ। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज पढ़ रहे हैं या जॉब में हैं और कोई चीज़ नहीं आती आपको, तो नो प्रॉब्लम, आपको उसको समझना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आता तो उसको सिखाओ, उनके लेवल पे आओ और विदाउट हर्टिंग देयर ईगोज उनको एहसास नहीं दिलाओ कि तुम ग्रेजुएट होगे, तुम पोस्ट ग्रेजुएट, तुम्हें ये नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तो पहले उनके साथ एक फ्रेंडली एक बिहेवियर डेवलप करना होता है एज ए टीचर, उनकी प्रॉब्लम को समझना होता है, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार कोई भी चीज़, कई बार कोई मोटिवेशन क्लासेस के जरिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उसको ये लगना चाहिए कि उसको आज संडे का दिन भी उसको घर में ना लगे कि काश आज भी मेरा क्लास होता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा तो स्टूडेंट जो है संडे के दिन मेरे पास भी आए, उस दिन भी मेरे पास आए। तो मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट whenever any student comes to my academy, first I try to make a very good rapport with him. I try to understand his problem. I try to find out what is the area of improvement, and then I start. I don't simply start teaching. First, after knowing all these things, I just make a frame in my mind how to teach the guy. There are different students and different mindset, different level. So हर किसी के लेवल पे आके आपको आके पढ़ाना होता है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है बेटा, और उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाना, आपको अपने हिसाब से नहीं देना है, हर स्टूडेंट को समझाना है। अगर वहाँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो उसके हिसाब से भी आपको 2 या 3 बार उसको समझाना है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो MN इंग्लिश कर चुका है या फिर ऐसा कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके लेवल पे भी जाके आपको पढ़ना है। तो आपको दोनों की नीड, उनके एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखते हुए पढ़ाना होता है। तो बस फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप करना है और आसान से आसान तरीके पे पढ़ाना है। टीचिंग डजंट मीन दैट गिविंग अ फ्लैशी लेक्चर्स और जस्ट एक इस तरीके से एकदम बहुत फ्लुएंट बोलकर इम्प्रेस करना नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। You have to be in the mind of the student. You have to lead win the heart of the students. और जब एक बार हो गया तो फिर आप उस बच्चे से कुछ भी करा सकते हैं, आप
उसको पढ़ा सकते हैं, उसको देर तक बिठा सकते हैं, उसको देर तक रोक सकते हैं। क्लास के अंदर तो बच्चे बहुत से पढ़ लेते हैं, जब क्लास के बाहर जब वो घर पे जाएं, रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स जो है उस वक्त अगर वो बच्चा पढ़ रहा है मतलब आपकी सक्सेस है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे से लेके जाए बच्चा वो उसको 23 आवर्स में एग्जीक्यूट करे और वहाँ भी वो पढ़े। तो टीचर की जिम्मेदारी 23 आवर्स में भी है, ये भी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा कहना है सर। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो सोचते हैं कि जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर कोई भी वो लैंग्वेज सीखते हैं या फिर कोई नॉर्मल लोग भी रहते हैं जिनको नए लैंग्वेज सीखने में रुचि रहती है, तो वो ये भी सोचते हैं कि ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर काम आएगा। तो सर आप बता सकते हैं कि उनको कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी लाइफ में वो कहाँ पर काम आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज इट इज not just a means of communication, it has become the lifestyle nowadays. English language is just since we are a part of global, so हम जब globalization हो गई, पूरा world जो है हमारा जो है वो connect हो गया है, so whole world is shrinking day by day. Means by one click you can access to any part of the world. So now the traditional the way of life is rapidly changing. Now, if you see the traditional, the professional or occupations, it has been completely changed. Now, this is the time of cyber security. It is the time of cloud computing, machine learning, data science, robotics, mechatronics. So these are the new trends of education, new way of learning. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको सीखने के लिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही जो आपको सीखना है। तो तभी आप जाकर उसमें अपना एक ग्रिप लगा सकते हैं। यू कैन हैव जस्ट कमांड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो लर्निंग में ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी डे टू डे लाइफ में मेरा ये मानना है वाइल इन रोम डू एज द रोम्स डू, जैसा देश वैसा देश। अगर आपके साथ जो लोग हिंदी स्पीकर हैं आप उनके साथ हिंदी में बात करें। अगर आपके घर के काम वाली भाई छत्तीसगढ़ी में बात करें तो उनके साथ छत्तीसगढ़ी में बात करें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है या ऐसे लोग मिलते हैं दोज आर इंग्लिश स्पीकर, सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी और छत्तीसगढ़ी। सो जैसी नीड वैसे उसके हिसाब से लैंग्वेज को यूज़ करना आना चाहिए। सो लैंग्वेज का यूज़ लोग बहुत जगह गलत तरीके से करते हैं, गलत जगह करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह के लिए। No problem. You are going to meet number of people because everybody is learning language nowadays. They have come to know the importance of this language. It has become the password to enter the world of the success. सर आपके यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद किस जगह पर प्लेस हैं? I was very fortunate that many of my students are in national repute and international organization. Many of them are working at Adani Group, Reliance Industry, Infosys and Tata's also in the senior level. But I was very lucky that many of my students are now in abroad also. More than 20 students are in Canada, UK, USA also, in Dubai, Sultanate of Oman, Bahrain. So these are the places where, and New Zealand also. So I was very fortunate that I got such a nice student. They worked hard, and because of their hard working, dedicated efforts, and then honesty, then sincerity, and disciplined way that took them to that places. So ये सिर्फ एक टीचर की ही मेहनत नहीं होती बेटा, बच्चे भी वैसे होते हैं कि जो अपनी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत, उनकी लगन आज उनको वहाँ तक पहुँचाती है। टीचर एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है, और आप बहुत खुशनसीब होते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। मैंने उनके पीछे उनको एक रास्ता दिखाया, उनको उनके बेसिक्स को क्लियर किया, पर उन्होंने वो सारे सिस्टम को फॉलो किया, मेहनत की। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास ऑल्सो दे वर्कड हार्ड। सो हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कुछ कैजुअल होते हैं, कुछ डेडिकेटेड होते हैं, कुछ एम्बिशियस होते हैं, कुछ ओवर एम्बिशियस होते हैं। तो इन सब जगह पे एक ही बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं है। आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट्स चाहिए, ये चीज़ें आपको सक्सेस दिलाती। तो ये चीज़ें उनके साथ ही आज वो इन कंट्रीज़ में है कि आज वो जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे बच्चे आज उस सारी जगह पे हैं।
सर और मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सर, आजकल नॉर्मली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको मतलब नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। कई सारे ऐसे लोग रहते हैं, तो कई सारे लोग को लैंग्वेजेस सीखने का शौक रहता है, बुक्स रीड करने का शौक रहता है। तो कई उनमें से भी कई सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर उनके काम के कारण, फैमिली के कारण, जॉब के कारण, बिजनेस के कारण उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सर सब एक छोटा सा इफेक्टिव वे आप उनको क्या बता सकते हैं जिससे वो भले ही धीरे धीरे आराम आराम से साल भर के अंदर पर उस लैंग्वेज को लर्न कर पाए और एटलीस्ट वो अच्छे से वो लैंग्वेज के जो वर्ड्स रहते हैं उनको प्रोनाउंस कर पाए और पीपल से टॉक कर पाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बेटा। सबसे पहली बात है आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी आपकी। जी सर। तो जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि यस ये मेरी नीड है, आप अगर जब बिजनेस में है तो कोई सिर्फ शौक के कारण नहीं आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस लैंग्वेज को सीख लूँ तो डेफिनेटली मेरा इसमें फ़ायदा होगा। आई कैन एक्सेस माई बिजनेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंट लेवल पे मैं इस बिज़नेस को ले जा सकता हूँ। तो जाहिर है कि जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम निकालेंगे ही। और बेसिकली क्या फ़ायदा और नुकसान एक बहुत बड़ा टर्म होता है कि जब आपको लग रहा है कि ये मेरा नुकसान होगा, मैं नहीं सीखूंगा, तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स लगाएं। या फिर ऐसा भी एक दूसरा माइंडसेट कि अगर मैं इस लैंग्वेज को सीख लूँ तो डेफिनेटली मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो इस लेवल पे उसको टाइम मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा सेकेंड स्टेप पे कि वो अपने टाइम को मैनेज करे। मॉर्निंग नहीं है तो इवनिंग, इवनिंग नहीं तो मॉर्निंग, ये कहीं पे अगर दोनों जगह वो बिजी है तो उसको समय चुराना होगा। सबसे पहली बात मैं जैसे कहता हूँ कि जैसे सपोज मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको शिमला जाना है और आप पैकिंग कर रहे हैं, बैग में सारे अपने कपड़े रख लिए, लास्ट मोमेंट आपके दो कपड़े बचे, एक आपका कोट और आपका जींस। आपको जींस बहुत पसंद है तो आपने जींस को बैग में डाल दिया। अब उसके बाद एक रुमाल भी नहीं डाली जा सकती सपोज, तो आप देख रहे हैं कि आपका कोट बाहर है। अब आपको शिमला जाना है, ठंडी काफ़ी माइनस में टेम्परेचर है, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ जाकर क्या आप कंफर्टेबली उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। वहाँ की नीड क्या है? आपको वो जैकेट को चाहिए, पहनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस जींस को निकालना पड़ेगा और जैकेट को डालना पड़ेगा। तो वो जींस और जैकेट क्या है? प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव जो है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस टाइम की नीड क्या है। तो आप अपने टाइम्स में 24 आवर्स में अनप्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करें। कहीं आप ये टाइम किसी अदर एक्टिविटीज में तो नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को तो नहीं दे रहे जो वक्त आपका ज़ाया हो रहा, तो उस वक्त को आपको निकाल कर आप पढ़ाई करें। आज वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट खुला हुआ है हमारे पास, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, हम जैसे हज़ारों लोग हैं वहाँ पे जो बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब। ऐसे यूट्यूब्स में बहुत सारे आप तो खुद ही बना रहे हैं ऐसे चैनल्स जी, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, उनको पढ़ें, देखें, सीखें और एक अच्छा ऑब्जर्वर बने वो, और सीखें कि जहाँ चाहत होती है तो वहाँ उसको कोई नहीं रोक सकता बेटा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए, समय को चुराना होगा और उस समय में अपना टाइम देकर आप सीख सकते हैं। किसी को फॉलो करें, छोटे छोटे वर्ड्स को डेवलप करें, ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान दें, टेंसेस, वॉइस मॉडल, दीज आर द बेसिक्स, और उस पर काम करें। और उसके बाद एक अच्छे कोई फ्रेंड्स बनाएं, लोगों के साथ बात करें, लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्योंकि अब गलतियाँ होंगी तो गलतियों की परवाह ना करें, कोशिश करते जाएं और एक दिन यही छोटी छोटी कोशिश आपको एक दिन एक अच्छा स्पीकर बना देती है। सर आपने 25-26 ईयर से भी ज़्यादा टीचिंग की है, और सर तो इतने सारे सालों में तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, और मेरे हिसाब से तो आप एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। पर आप अपने आप को किस तरीके से सक्सेसफुल मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सक्सेस जो है वो इट्स अ जर्नी, यू हैव टू कीप ऑन, यू हैव टू जस्ट always improve yourself, it's not the destination, okay? So you have to keep on trying, you have to keep on learning the new things. So success कोई ठहराव नहीं है, एक पड़ाव नहीं है मेरे ख्याल से, ये हमेशा हमको आगे कुछ बेहतर सीखते रहना है।
तो आज भी मैं समझता हूँ कि ये अलग बात है कि मेरे स्टूडेंट मुझे एक अच्छा टीचर मानते हैं, पता नहीं मैं उतना अच्छा टीचर हूँ कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। सो आई नेवर एवर जस्ट मिस एनी चांस टू लर्न। मुझे आज भी सीखने का शौक है और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई उम्र नहीं होती, टिल लास्ट में दिन यू कैन लर्न। सो हर रोज मैं कुछ सीखते जा रहा हूँ। सफलता मेरे नज़दीक ये है कि व्हेन योर वर्क is recognized by the people, and that's when you win the loyalty of the people, when you put your 100% in your work and that work is recognized in the society, and it reflects in your students success. That is the real success of mine. मेरे बच्चों का सक्सेस मेरा सक्सेस है, और वो जब अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो इससे बड़ी खुशी एक टीचर को क्या होती है जब वो अपने बच्चों को एक सफलता के ऊंचे शिखर पे देखता है। तो यही मेरा मैं ये कहूँगा कि ये 26 से 27 साल जो हुए, ये मैं खुश इस किस्मत हूँ कि मेरे बच्चे आज पूरी दुनिया में सभी जगह पे जा रहे हैं और अच्छा बेहतर कर रहे हैं। जी सर। सर आपने इतनी सारी सक्सेस पाई है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा रहता ही है कि फैमिली का योगदान रहता ही है, तो आपके इतने सक्सेस में फैमिली का क्या योगदान रहा? मैं कहूँ तो फैमिली का ही बहुत बड़ा योगदान जी है। सर। जब तक आपके साथ आपकी फैमिली साथ नहीं है तो कोई भी सक्सेस मायने नहीं रखती। सही मायने में तभी आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं जब आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग्स में सब आपके साथ एक साथ रहे लोग। तो मैं बहुत खुशनसीब रहा इस मामले में कि मेरे साथ सबसे पहली बात मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, मॉरल सपोर्ट रहा, और उन्होंने मुझे वो सब करने के लिए दिया जो मैं करना चाहता था। ज़्यादातर आजकल ऐसा होता है कि पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड कर लेते कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर तुम्हें एरोनॉटिक्स में जाना है या एरोस्टेस बनना है, जबकि बच्चा कुछ और करना चाहता है। तो मेरे नज़दीक ऐसा था कि मुझे वो सब करने के लिए मुझे छूट थी। उन्होंने मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। मैं ये इस बारे में मैं कहूँगा आई वॉज वेरी लकी इनफ टू हैव सच नाइस पेरेंट्स। और उस स्ट्रगल के दौर पे जब 27 साल पहले दुर्ग शहर में कोई भी एकेडमी नहीं थी, आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एज अ प्रोफेशनल एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट एट द टाइम। सो उस डिसीजन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे। हाउ विल यू अर्न, हाउ विल यू दिस मेक यूर लाइवलीहुड, कैसे अपनी लाइफ को चलाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे वो सब करने दिया। तो जस्ट ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहा। आफ्टर मैरिज मेरे साथ मेरी बेटर हाफ मिसेस नरगिस मिर्ज़ा, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी सक्सेस में। जब इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया दुर्ग पॉलिटेक्निक से, इनके सारे फ्रेंड्स आज जॉब्स में हैं। कोई लोग पायलट है, कहीं कोई रेलवे में, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने की है। लेकिन इन्होंने मुझे चुना और मेरे काम को चुना कि नहीं मैं आपके साथ रहूँगी, और ये मेरा एडमिन वर्क पूरा संभालती रही साथ में। चाहती तो ये भी जॉब कर सकती थी, लेकिन इन्होंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझी, क्लास और मेरे जॉब को समझा, मेरे साथ हमेशा स्टेप बाय स्टेप में शोल्डर टू शोल्डर वो हमेशा मेरे साथ रही। बच्चों की अपब्रिंगिंग, आज मेरे दोनों बेटे जो हैं एनवायरमेंट, दोनों बैंगलोर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो बड़ा बेटा जो है वो एक अमेरिकन कंसर्न के लिए काम कर रहा है, छोटा वाला बेटा जो है वो BBA फाइनल ईयर में है अभी वो। तो सारी पढ़ाई DPS की पढ़ाई जो हुई सब, तो बच्चों की सक्सेस में पूरे समय ये लगी रही, उनके साथ भी रही और मेरे साथ भी रही पूरा। तो इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं आज उसने मुझे हिम्मत दी। इन्हीं की वजह से मैं कुछ काम बड़े खुल के कर सका। अदरवाइज़ मैं 11 घंटे क्लासेस करीबन लेता हूँ, 10 से 11 घंटे मैं क्लास में बिजी ही रहता हूँ ऑलमोस्ट। तो बहुत कम समय दे पाया मैंने फैमिली को। मेरी फर्स्ट फैमिली मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी फर्स्ट फैमिली यही है। तो उस समय में इनका सपोर्ट रहा, इन्होंने कोऑपरेट किया इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए। और मैं कहता हूँ कि हर किसी को ऐसी वाइफ मिलनी चाहिए जो उनकी सिचुएशन को, फैमिली के हस्बैंड को, फैमिली की प्रायोरिटीज़ को समझे और आगे बढ़े। आज उनके पास सारा ऑप्शंस हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा यही चुना अपना काम न करके मेरी प्रायोरिटीज़ को मेरे साथ रही। तो मेरी सक्सेस मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज को, यूथ को
एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले बीइंग ए टीचर मेरा मैसेज तो स्टूडेंट्स के लिए होगा कि यू हैव टू बी द नंबर वन इन योर फील्ड, बी द बेस्ट वट एवर यूर डूइंग। एवरी जॉब हैज इट्स ओन डिग्निटी। हर जॉब अच्छा है, उसमें कहीं कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं है। तो पहली बात तो हमारे दिमाग से माइंडसेट हटा दें कि कोई जॉब छोटा या बड़ा होता है। हर काम को जिसमें आपका दिल करे वो काम करें। लिसन टू योर हार्ट। जो अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसका जो मैसेज वही था कि अपने दिल की सुनाएं आप, और जो भी काम करें उसमें पूरी लगन से करें, डेविएट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो जब तक आप अपने किसी मुकाम पे ना पहुंच जाए, और हार्डवर्क करें। और जो कुछ ऐसा करें कि आप सोसाइटी के लिए कुछ एग्जाम्पल बने। आप सिर्फ अर्निंग ही आपका मोटो नहीं होना चाहिए कि आप कुछ अच्छे जॉब्स या कुछ अच्छी सैलरी अचीव कर लिए, तो ये नहीं। मेरा समझना है कि आपने जो कुछ भी अर्न किया है सोसाइटी से किया है, तो सोसाइटी को आपको ये देना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आज नेकी की पाठशाला में मातू मैडम के साथ भी काम करता हूँ, उन NGO में भी, अपने NGO के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ मदर्स में। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इस काम को। जब आप गिविंग वाले एटीट्यूड में होते हैं तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सोसाइटी में कुछ अच्छा करें, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ बेहतर करें, सिर्फ अपना न सोचें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से जो गांव के लोग होते हैं जहाँ पे अभी शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, उनकी प्रॉब्लम को समझें और उनके लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। और एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जी सर। तो ये मेरा एक मैसेज है उन बच्चों के लिए। तो गाइस अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं मिर्ज़ा सर से मिला और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं सेल्फ मोटिवेट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सर से मतलब सिर्फ जैसे ही मैंने सर से बात की थी वैसे ही मुझे अलग से अंदर से मोटिवेशन आया कि सर इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और कैमरा में ही नहीं, कैमरा के पीछे भी हमने काफ़ी सारी बातें की और उसमें सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और सर का एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमेशा ज़िंदगी में लर्न करना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए। हम लोग हमको हर चीज़ ज़िंदगी में लर्न करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम अपने से कम उम्र के से लर्न कर रहे हैं तो हमको गिल्टी फील होना चाहिए। नहीं, हम हर एक चीज़ से लर्न कर सकते हैं। इवन छोटे छोटे एनिमल से हम लर्न कर सकते हैं कि जैसे चींटी अपने से 6-7 गुना ज़्यादा वजन उठाकर अपने लिए ले जाती है, तो उससे भी हम कई सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और हम जो अर्न करते हैं उसमें से हमको कुछ हिस्सा सोसाइटी को देना चाहिए और हमको हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। तो आज के ये मैसेज के साथ मैं आपको व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद जो वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।